Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10th. So students, in the previous video, we have completed reading with our last chapter from the book Footprints Without Feet. It is chapter number 10 and the name of the chapter is The Book That Saved the Earth, right? So this is very interesting play and I am very much sure that you all have enjoyed reading the play, right? And in today's video, we will see the comprehension part. We will solve the questions. Okay, so let's begin. Question first, why was the 20th century called the era of the book? Okay, so according to the play, right, the 20th century, it was known as the era of the book. Okay, and we have to tell the reason. Okay, that what was the reason. Okay, so let's see. The 20th century was called the era of the book. It was because there were books about everything. Okay, so the setting of our play is in future. It is futuristic play, right? And what is the time? It is 25th century and at that टाइम देयर वर नो बुक्स. ओके, जो पेपर बुक्स होती हैं जो हाँ आज हम सब पढ़ते हैं, राइट, वो बुक्स जो है वो फ्यूचर में नहीं है, राइट. सो उनको क्या लग रहा था कि जो 20th सेंचुरी है, दिस वाज द एरा ऑफ द बुक. व्हाई? बिकॉज इस समय हर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी बुक्स थी. इवन देयर वर बुक्स फ्रॉम एंट ईटर्स टू जुलूस. ओके, देन बुक्स टॉट द पीपल ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ओके, और जो बुक्स थी, ओके, वही सबसे बड़ा मीडियम थी टू टीच द पीपल अबाउट ईच एंड everything, like how to, when to, where to and why to. Okay, and they illustrated, educated, punctuated and even decorated. Okay, और जो 20th century है इसमें बुक्स ही वो मीडियम है जो यूज़ होती हैं to illustrate each and everything, to educate people, to punctuate and to even decorate. Okay, so this was the reason that 20th century it is known as an era of the book. Okay. Next question, who tried to invade the earth in the 21st century? Okay, so according to the play, who tried to attack on planet earth in 21st century? Okay, so let's see the answer. The Martian people. Okay, and Martian people कौन है? जो planet Mars पे रहते हैं. They tried to attack on planet earth in the year 2040. Okay. Next question, what guesses are made by think tank about the books found on earth? Okay, so in this question we have to tell that जब वो space crew, okay, जब Mars का space crew जो planet earth पे आता है and when they entered into one of the library, okay, and there they found the books. Okay, so they were unable to understand, they were unable to recognize that they are books. Okay, और जब वो think tank से ही पूछते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कि आप हमें बताओ कि क्या चीज़ है. so according to think tank वो क्या क्या गैसेस बताता है, उसको क्या लगता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है. ओके, दैट वी हैव टू राइट. ओके, सो लेट्स सी. Initially, think tank guesses that the books are sandwiches. Okay, so first of all, what was the first guess of think tank? That was that those objects are sandwiches. Why? उसको ऐसा क्यों लगता है? Because उसने कहीं ना कहीं सैंडविच के बारे में पढ़ा था कि इसमें दो स्लाइस होती हैं और बीच में कुछ स्टफिंग होती है. और जब उसने बुक्स को देखा तो उसको बिल्कुल वैसा ही लगा कि जिसका जो दोनों साइड्स के जो कवर्स है, राइट, दे आर स्लाइसेस और जो बीच में जो पेज हैं दे आर लाइक स्टफिंग. ओके, सो उससे लगा कि दे आर सैंडविचेस. देन ही कॉल्स देम कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ओके, बाद में जब उसको लगता है कि नहीं शायद ये खाने की चीज़ नहीं है, देन वो क्या कहता है कि दे आर सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ओके, लेटर ही सेज दैट दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन. ओके, बाद में जब नूडल उसे गाइड करता है देन ही रियलाइजेस एंड देन ही वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है दैट यस दे आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस बट दे आर नॉट फॉर ईयर बट दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन. ओके. Next question, Noodle avoids offending think tank but at the same time he corrects his mistakes. How does he manage to do that? Okay, so in this question first of all we are given with one statement. So what is the statement? It is that Noodle avoids offending think tank, right? Offending means उसको नाराज करना, right? जो think tank है वो जो उसको नूडल बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहता but at the same time he corrects his mistake. लेकिन साथ ही साथ नूडल जो है वो
थिंक टैंक की मिस्टेक्स को करेक्ट भी करता है. ओके, सो नाउ आवर क्वेश्चन इज दैट हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट. ओके, सो नूडल ये चीज़ कैसे मैनेज कर लेता है कि थिंक टैंक को नाराज किए बिना वो उसकी मिस्टेक्स को करेक्ट भी करता है. ओके, सो लेट्स सी. नूडल इज थिंक टैंक्स डेप्यूटी. ओके, सो जो नूडल है वो क्या है, वो एक्चुअल में थिंक टैंक का असिस्टेंट है, उसका जूनियर है. ओके, ही कांट ऑफेंड थिंक टैंक हिज सीनियर. सो ऑब्वियसली वो अपने सीनियर थिंक टैंक को अपसेट नहीं कर सकता, उससे ऑफेंड नहीं कर सकता. बट ही इज अवेयर अबाउट हिज मिस्टेक्स एंड ट्राइज टू करेक्ट देम विदाउट लेटिंग हिम नो. ओके, बट एट द सेम टाइम नूडल इज वेरी मच अवेयर अबाउट थिंक टैंक्स मिस्टेक्स. ओके, एंड ही जस्ट वांटेड टू करेक्ट हिज मिस्टेक विदाउट लेटिंग हिम नो. ओके, सो ये कैसे करता है, ही डज दिस बाय प्रेजेंटिंग हिज ऑन थॉट्स बाय रेफरिंग टू देम एज बीइंग ऑफ नो इम्पॉर्टेंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा पोलाइटली अपनी बात कहता है और वो ये कहता है कि ही जस्ट वांटेड टू शेयर सम इंफॉर्मेशन एंड ही ऑल्सो नोज दैट उसकी जो इन्फॉर्मेशन है दे आर हैविंग नो इम्पॉर्टेंस. ओके, सो इस तरह से वो अपनी बात कहता है. ही जस्ट शेयर्स द करेक्ट फैक्ट्स विथ थिंक टैंक विदाउट मेंशनिंग दैट ही इज करेक्टिंग हिम. ओके, एंड वो जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल सही है, जो करेक्ट फैक्ट है, राइट, वो उसे शेयर करता है. बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट मेंशन दैट ही इज करेक्टिंग थिंक टैंक. ओके, थिंक टैंक सेज दैट द बुक्स ऑन द अर्थ आर सैंडविचेस. ओके, देन वी हैव टू गिव सम एग्जांपल्स. ओके, सम इंस्टांसेस फ्रॉम द प्लेस. सो वी हैव टू राइट दैट थिंक टैंक को स्टार्टिंग में क्या लगता है, दैट द बुक्स ऑन द अर्थ दे आर सैंडविचेस. ओके, बट नूडल सेज दैट दे आर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ओके, बट नूडल जो है उसे पता था दैट कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो खाने की चीज़ नहीं है, बट दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन डिवाइसेस. ओके, थिंक टैंक एग्रीज टू इट. सो फाइनली थिंक टैंक कोई बात से एग्री होना होता है. Later, when think tank orders his crew to listen the books, Noodle says that Earthlings use them as eye communication. Okay, so बाद में जब think tank कहता है कि हाँ ये communication devices है and he gave the order to listen to those devices. Okay, तो ऐसे में Noodle फिर से कहता है कि they are communication devices but they are not for ear communication but they are for eye communication. Okay, again think tank agrees to it. Okay, so इस तरह Noodle जो है वो उसको correct भी करता है बट वो कहीं भी ये मेंशन नहीं करता कि वो उसे करेक्ट कर रहा है, राइट, बिकॉज वो अपने सीनियर को थिंक टैंक को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकता. ओके, next question, if you were in Noodle's place, how would you handle think tank's mistakes? Okay, so in this question we have to write our own viewpoint that if we were in Noodle's place, right, अगर हम नूडल की जगह पर होते और हमारे सामने कोई हमारा सीनियर है, राइट, वो गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और हमें एक्चुअल में जो रियल फैक्ट है वो हमें पता है, राइट, सो हम कैसे बिहेव करते, हम क्या गलत बात सुन लेते या हम नूडल की तरह बिहेव करते या हम किस तरह से उसके हमारे सीनियर के मिस्टेक को हम ठीक करते हैं, राइट. सो स्टूडेंट्स यू कैन राइट योर ऑन आंसर हियर दैट अगर आप नूडल के प्लेस पे होते सो आप किस तरह से रिएक्ट करते. ओके, दैट यू हैव टू राइट हियर. ओके, सो लेट्स सी. If I were in Noodle's place, I would handle think tank's mistake like Noodle. Okay, so Noodle ने इतना परफेक्टली सारी चीज़ों को मैनेज किया था, हैंडल किया था कि अगर हम भी नूडल की जगह पर होते सो बिल्कुल वैसे करते जैसे कि नूडल ने किया था. नूडल पॉइंट्स आउट थिंक टैंक्स एरर्स एंड करेक्ट्स दैम. ओके, सो जो नूडल है वो थिंक टैंक की सभी मिस्टेक्स को बिल्कुल अच्छे से समझ जाता है कि हाँ ये गलत बोल रहा है और देन ही ट्राइज टू करेक्ट दैम. ओके, सो शैल आई, देन ही डज so politely, so I shall also do so. Okay, और नूडल ने जो करेक्शन किए थे वो इतना पोलाइटली किया था, इतना हम्बल मैनर में किया था कि हम भी बिल्कुल ऐसा ही करते. ओके, सो जो मैनर था नूडल का दैट वाज क्वाइट परफेक्ट. ओके, next question, do you think books are being replaced by the electronic media? Can we do away with books altogether? Okay, so in this question we have to tell first of all our viewpoint कि हमें क्या लगता है कि धीरे धीरे, राइट, जो बुक्स है उनको रिप्लेस किया जा रहा है किससे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से. ओके, सेकेंडली वी हैव टू टेल दैट व्हाट डू वी थिंक कि क्या कोई टाइम ऐसा भी आएगा जब जो बुक्स हैं, राइट, वो पूरी तरह से हट जाएंगी, बुक्स जो है वो
वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, क्या ऐसा भी कोई टाइम आ सकता है? ओके, सो स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज वेरी मच रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, राइट? जबकि हम सबने देखा है कोविड टाइम में, जब जो एक रेगुलर स्कूल होता है, एक रेगुलर जो क्लासरूम होता है, राइट, वो बिल्कुल बंद हो चुका था, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, राइट, उनकी हेल्प से हम सबकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू हो रही थी। ओके, सो मे बी इन फ्यूचर में धीरे धीरे जो टाइम है वो चेंज होता जाए, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, राइट, वो जो है वो बुक्स को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे, राइट? सो व्हाट इज आवर व्यू पॉइंट, हमें इस बारे में क्या लगता है, दैट वी हैव टू राइट हियर। ओके, सो स्टूडेंट्स यू कैन राइट योर ऑन व्यू पॉइंट अकॉर्डिंग टू यू। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो बुक्स हैं वो कम्प्लीटली बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगी? क्या ऐसा भी टाइम आ सकता है? या फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, बुक्स जो हैं दे हैव देयर ऑन इम्पॉर्टेंस, राइट, और वो कभी भी ऑल टुगेदर ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो यू हैव टू राइट योर ऑन व्यू पॉइंट, बट यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर कि आप जो व्यू पॉइंट अपना दे रहे हैं, सो यू हैव टू सपोर्ट दैट पॉइंट, you have to justify your point, okay, by giving some reasons. Okay, so let's see. Yes, I think that books are being replaced by the electronic media. Okay, so in today's world we can say that yes, जो books हैं, right, they are being replaced by many kinds of electronic media. These are called compact disc. Okay, और अब जो books में जो text होते हैं, right, उनको CDs के form में store किया जा रहा है, right? Online reading has replaced traditional books to a large extent. Okay, और अब जो online reading है, right, उसका culture भी इतना ज़्यादा grow होता जा रहा है कि जो एक एक ट्रेडिशनल बुक्स का कल्चर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वी हैव ई बुक्स ऑल्सो, ओके, और हमारे पास आज के टाइम में ई बुक्स हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट है तो हम किसी भी टाइम किसी भी बुक को हम अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं, हम उसको रीड कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास वो पेपर बुक हो, राइट, हम किसी भी बुक को ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, राइट। बट सीडीज कांट रिप्लेस बुक, ओके, लेकिन साथ में वी हैव टू राइट कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और वी कैन से जो सीडीज हैं, ओके, दे कैन नॉट रिप्लेस द पेपर बुक्स। ओके, बुक्स आर परमानेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। व्हाई देन नाउ वी आर गिविंग द रीजंस, बिकॉज जो बुक्स होती हैं वो परमानेंट होती हैं। ओके, दे कैन नेवर डिसअपीयर। ओके, एक बार जो कोई चीज़ बुक में आ गई है, वो उस बुक में से वो जो फैक्ट किसी बुक में है वो उस बुक में से कभी भी खराब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी सीडीज आर लायबल टू करप्शन, बल्कि जो सीडीज होती हैं, राइट, ऑन द कॉन्ट्रेरी वो कभी भी करप्ट हो सकती हैं। देन दे कैन ब्लैंक आउट थ्रू अ वायरस, और जो सीडीज हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज हैं उनमें कभी भी वायरस आ सकता है, वो ख़राब हो सकती हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। बट जो पेपर बुक्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। ओके, reading a book while holding it in hands is altogether a different experience that e-books will never be able to replace. Okay, one more reason is कि जब हम एक बुक को अपने हाथ में लेके पढ़ रहे हैं, हम एक एक पेज को टर्न करते जा रहे हैं, सो ये जो एक्सपीरियंस है, राइट, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। जबकि हम कोई ई बुक पढ़ रहे हैं हमारे किसी सिस्टम पे, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो और फ़ोन हो, राइट, सो वो जो एक्सपीरियंस है, दैट एक्सपीरियंस इज सो डिफरेंट कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी पेपर बुक्स को बिल्कुल ही छोड़ दें और सिर्फ हम ऑनलाइन बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन रीडिंग करें। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बुक को अपने हाथ में लेके बैठना, एक एक पेज को टर्न करना, राइट, दिस इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। ओके, next question, why are books referred to as a man's best companion? Which is your favorite book and why? Write a paragraph about that book. Okay, so in this question we have to tell first of all that हमने starting से सुना है, बचपन से हमने सुना है that books are our best companion or we can say best friend. Okay, so ऐसा क्यों कहा जाता है, books को हमारा best companion क्यों माना जाता है? Okay, secondly you have to tell about your favorite book, that what is your favorite book and why, what are the reasons. Okay, and then you have to write one short paragraph about that book, right, कि आपकी जो favorite book है वो आपकी favorite क्यों है, उसमें ऐसा क्या है, और उस book के बारे में you have to write some lines. Okay, so this part of question you have to do by yourself. अपनी book के बारे में, आपकी वो favorite book क्यों है और उसके बारे में कुछ lines, ये सब आपको अपने आप लिखनी है। Here we are discussing that why books are referred as man's best companion.
companion. Okay, so let's see. A book is a man's best companion because it guides us, teaches us, makes us laugh, makes us a better version of ourselves. Okay, so जो books हैं वो हमारे best companion इसलिए हैं कि जो books हैं वही हमें guide करती हैं, हमें teach करती हैं, और books जो हैं उनको पढ़ के हम कभी कभी हंसते हैं, right? और books हमें हमारा एक better version बनाने में help करती हैं. Okay, it is always with us. और जो books होती हैं वो हमेशा हमारे साथ होती हैं. We can always rely on them, right? So we can always depend on books. We can learn from them, enjoy them and get inspired. Okay, so books जो होती हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें teach कराती हैं, learn कराती हैं, और साथ ही साथ book पढ़ के हम enjoyment भी करते हैं, और बहुत बार हम अच्छी stories पढ़ते हैं, अच्छी books पढ़ते हैं तो हमें inspiration भी मिलती है. Okay, that's why जो books होती हैं they are known as our best companion. Okay, so after that student you have to write about your favorite book, the reason that why that book is your favorite one, and a few lines about that book. Okay, so students, we have completed all the question answers. I hope the chapter, the play and all the question answers, everything is clear to you all. Okay, so students, here we have completed our book, that is Footprints Without Feet. Okay, thank you.